Praise the name of the Lord. Hallelujah. Glory to the Lamb of God. The Lamb slain from the beginning of the universe. Hallelujah. Bruised, crushed, made to bleed, died on the cross, conquered the forces of darkness, defeated Satan's sin, death and Hades, is exalted at the right hand of the Father. Hallelujah. We worship the Lamb. We glorify the Lamb. Worthy is the precious Lamb of Yah. Worthy is the precious Lamb of Yah. Worthy is the precious Lamb of Yah. We bless you, bless you, bless you. We lift you up, Lamb seated on the throne. Lamb exalted, worthy of all our adoration and praise. We worship you, Yahushua HaMashiach. For your name is Yahushua HaMashiach, King of glory. Your name is Yahushua HaMashiach. You are the way, the truth, and the life. You are the light of the world. You are the bread of life. You are the fountain of living water. You are the door. You are the narrow way unto the Father. You are Amen, faithful, trustworthy. You are the firstborn among many. You are the redeeming King of the universe. For your name is Emmanuel. You are wonderful, Counselor, mighty God, the one who shoulders the eternal government. You are the seed of David. You are the seed of Abraham. Hallelujah. Your name is Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. You are King of kings and the Lord of lords. On your thigh there is a name written that no one can read. Hallelujah. The glory of heaven, the splendor and majesty of the face of the Father, the express image of the invisible God, holding, sustaining the universe by the power of His word. In you, all things consist together. You are the express image of the invisible God. Hallelujah. You demolished the middle wall of partition that separated us. And by virtue of your blood, we who were far away from God, you brought us nigh unto Him. You are a redemption, Jesus of Nazareth. You are a peace. You don't merely give peace. You are shalom. You are a peace, Lord Jesus. Hallelujah. You are a salvation. You don't merely give us healing. You are the healing. So we exalt you. We bless you, Jesus of Nazareth. We bless you, bless you, bless you. We magnify your holy name. 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 We magnify your holy name, King of glory. We magnify your holy name. We magnify your holy name. We magnify your holy name. King of glory, we magnify your whole. There is none like you. There is none besides you. You are the lily of the valley. You are the rose of Sharon. Jesus of Nazareth, we thank you, thank you, thank you. We bless you, bless you, bless you, King of glory. We exalt you. We magnify your name. Hallelujah. कितना सकूं है बातों में तो नशा है राहों में तेरी अजब नशा है राहों में तेरी झुक झुक के सजदा करूं यसु तेरी पूजा करूं यसु तेरी 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 तमन्ना करूं चरणों में तेरे बैठूं तेरी प्रशंसा करूं कितना सकूं है बातों में तेरी कैसी कशिश है आँखों
में तेरी अजब नशा है, राहों में तेरी अजब नशा है, राहों में तेरी झुक झुक के सजदा करूं, यसु तेरी पूजा करूं, यसु मैं तेरी पूजा करूं, येसु। गाइए मेरे साथ, येसु येसु येसु। Hallelujah. Jesus of Nazareth, we bless your holy name, King of glory. We bless your holy name. Hallelujah. The Alpha and the Omega, the beginning and the end. We bless your holy name. Your name is Yahuwah Shammah, the Lord who is there, the ever-present help, the ever-existing, self-existing one. Hallelujah. You are Hayya Asher Hayya. You are Hayya Asher Hayya. Hayya Asher Hayya. The Lord said out of the burning bush unto Moses when he asked his name. The Lord said, Hayya Asher Hayya. Hallelujah. Lord said, Hayya Asher Hayya. Hallelujah. Ego M-A-I. Jesus said, Ego M-A-I. I am. I am. Before Abraham, Jesus didn't say I was. Jesus said, before Abraham, I am. Yahushua HaMashiach, He is the greatest I am. Lord, we bow our knees before your sovereign authority and we come into your majestic presence. Lord, we just kneel before your lofty throne, highly exalted one, Lord, the floor of sapphire, the glassy sea, Lord, where all the trading happens, where all the prayers and petitions and supplication of your righteous one land there. Lord God, we approach that glassy sea in the mighty name of Jesus before your throne. Lord, we thank you for the access you have given us, hallelujah, to come before the glassy sea. And Lord, also come before the throne of grace and mercy through the blood of Yahushua HaMashiach. Thank you for the new, living and glorious way. You created a new and a living way. This is not the way of religion. This is not the way of human tradition and rituals. This is a living way, a way that pulsates with life. And we walk on that way and we come before you and we thank you for the spirit of sonship, the spirit of adoption that dwells in our mortal bodies, whereby we call you Abba Father, we call you Abba, we call you Daddy, we call you Avinu Malachinu, we call you Abun Dwashmayo. Hallelujah. Thank you for the anchor of our hope lies beyond the veil. Lord, thank you for the sonship. The greatest gift you gave me is sonship. Lord, hallelujah. I glory not in any other thing besides this one, that I am your son and you are my father. And I long to hear what your beloved son Yahushua heard from you. For you bore a testimony for him. You said, this is my beloved son in whom I am well pleased. Lord, I want to hear that echo in my soul, that you may say, he is my beloved son. In him I am well pleased. Father, in Yahushua's, यसु नासरी के जलाली नाम में मैं दुआ मांगता हूँ इन लोगों के लिए। खुदावन तेरा खून मैं इनके ऊपर छिड़कता हूँ, तेरे अहद का जलाली खून इन पे छिड़क देता हूँ खुदावन, तेरा काहिन होने के नाते, तेरा रसूल और खुदावन तेरा नबी होने के नाते तेरे जलाली खून को छिड़कता हूँ। जितने लोग खुदावन इस समय खुदावन तेरे खादम की आवाज़ के नीचे हैं
और जितने इसको बाद में सुनेंगे, मैं खुदावन तेरे जलाली खून की कुदरत को खोलता हूँ। जुए को तोड़ने वाला मसा, यशाया 10:27 में, शेमेन, द हिब्रू वर्ड इज शेमेन, दैट फैटी थिक unction, when the olives are crushed and the extra virgin olive oil gushes out, that shemen, your body was crushed and shemen that came out, I release that shemen, the thick anointing, fatty anointing I release upon your people. खुदावन तेरे कलाम को खोलिए। जब तक तेरा रूल कुद्दस तेरे कलाम को ना खोले, आँखों को ना खोले, और खुदावन दिल को ना खोले, और खुदावन इंसान की अंदरूनी गहराइयों को ना खोले। तेरे कलाम को लोग सतह पे पढ़ते हैं, सरफेस पे पढ़ते हैं, और खुदावंद काले हरफों का, लाल हरफों का इल्म तो हासिल कर लेते हैं, पर तुझे जानते नहीं। खुदावंद तेरी गहराइयों को खोल हमारे ऊपर। हम तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। हम तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते हैं यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। हालेलुया। कल से हम मेडिटेट कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि टेंपल बनाई जा रही है यरूशलेम की, सेकंड टेंपल। एज़रा याजकों को शुद्ध कर रहा है क्योंकि याजक अशुद्ध और अपवित्र हैं। यहोवा के याजकों ने अन्य जाति की स्त्रियों से शादियाँ की हैं, पोलेगैमी है, मल्टीपल विमेन से शादी की है। और कुछ भ्रष्ट याजक हैं जो अपनी बूढ़ी औरतों को त्याग पत्र देते जा रहे हैं और यंग औरतों को रख रहे हैं। बिल्कुल सेक्सुअल परवर्जन है इज़राइल में। और अगर आप एज़रा नबी की किताब उसका 9 अध्याय 8 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि एज़रा बहुत दुखी है देख के। और एज़रा खुदा का खादिम एक बड़ी गहरी दुआ करता है, अपनी अंदरूनी गहराइयों से यहोवा को पुकारता है, यहोवा के आगे चिल्लाता है जब वो काहिनों की, याजकों की बदकारियां देखता है। आपको मालूम, मलाकी इसी बात के लिए लिख रहा है। मलाकी देख रहा है कि जो काहिन है खुदा के, जो उनकी यहूदी बीवियां हैं जो बूढ़ी हो गई हैं, उनको वो त्याग पत्र दे रहे हैं, उनको त्याग रहे हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो त्याग पत्र भी नहीं दे रहे, उनको सिर्फ निकाल रहे हैं। बाइबल में अगर आप गहराई से पढ़ेंगे, जब एक इंसान अपनी बीवी को डिवोर्स देता है, उसे एक लेटर लिख के देना पड़ता है उसको। जब वो लीगल डॉक्यूमेंट लिख के देता है तो उसको एलिमोनी देनी पड़ती है, कुछ हिस्सा उस अपनी बीवी को देना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे भ्रष्ट थे जो डिवोर्स का लेटर भी नहीं देते, कहीं एलिमोनी ना देनी पड़े, मेंटेनेंस उसके जीवन के लिए ना देनी पड़े। तो मलाकी लिखता है उनके लिए। मलाकी कहता है तुम अपनी जवानी की बीवी को, जिसने अपनी जवानी तुम्हें दी है, उसको अब छोड़ रहे हो, तुम लानती काम कर रहे हो। और क्या लिखता है मलाकी? या हेट्स डिवोर्स, यहोवा को घृणा आती है तलाक से। इट्स एन अबॉमिनेशन इन द आइज ऑफ गॉड व्हेन अ मैन विल जस्ट यूज हिज वाइफ एंड थ्रो अवे एज समथिंग दैट वाज टू बी यूज्ड एंड इज ऑफ नो यूज नाउ। तो खुदावंद के कलाम में बड़ी गहरी बातें हैं, उन सबको हमने समझना है। इज़राइल की आत्मिक दशा बहुत बुरी है। उनका जो स्पिरिचुअल रूहानी ग्राफ है वो बिल्कुल नीचे चला गया है, जो बार लाइन होती है उससे नीचे चला गया है। उनके अंदर कोई आत्मिकता की बात नहीं है, रूहानी बातें उनके अंदर नहीं है, उनके अंदर मॉरल बातें नहीं है। नैतिक जीवन उनका करप्ट और भ्रष्ट हो चुका है, और सामाजिक जीवन उनका हेरा फेरी से, चोरी से, ठगी से, झूठी गवाहियों से, झूठी बातों से भरा है। लेकिन खुदावंद क्या कर रहा है? अपनी हैकल को बनाना चाहता है दोबारा, और खुदावंद बकिये को लेके आ रहा है। हमेशा खुदावंद का बकिया होता है, जिसे अंग्रेजी में रेमनेंट कहते हैं। परमेश्वर के हमेशा धर्मी लोग, पवित्र लोग, परमेश्वर के हुक्मों की पालना करने वाले, परमेश्वर के कलाम की रोशनी जिनके अंदर जलती है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति वफादार रहते हैं और राइचस जीवन जीते हैं। राइचसनेस एंड गॉडलीनेस, आपको मालूम ये दो बातें हैं। गॉडलीनेस इज नॉट राइचसनेस एंड राइचसनेस इज नॉट गॉडलीनेस, दीज आर टू सेपरेट वर्च्यूज।
परमेश्वर ने इज़राइलियों को 2 तख्तियों पे अपने हुक्म लिख के दिए। यहोवा खुदावंद एक ही तख्ती पे लिख के दे सकता था। मैंने आपको बताया पहले कि जो पहली तख्ती है वो स्पिरिट है, रूह है। दूसरी तख्ती ट्रूथ है, आत्मा है, सच्चाई है। पहली तख्ती है रूह, जिसे न्यूमा कहते हैं। यीशु मसीह सामरी औरत से कहते हैं कि समय आ गया है जब खुदावंद की सच्ची परस्तिश करने वाले, इबादत करने वाले लोग रूह और सच्चाई में खुदावंद की इबादत करेंगे। तो रूह, न्यूमा, स्पिरिट, रूहाक जो पहली तख्ती है वो बताती है रूह में कैसे करनी है, क्योंकि पहली तख्ती में जो 4 खुदावंद के नियम हैं, हुक्म हैं, दे pertain to God. The first 4 laws that God wrote on the first tablet, this was the tablet of sapphire. It was a very, very precious stone on which God Almighty himself inscribed with his finger. First 4 laws, they pertain to God. Fourth one is, thou shalt keep the Sabbath holy. The first 3 laws are pertaining to Godhead. How you have to walk before a holy God. How you must refrain from any image, any idolatry, and how you must not take the name of the Lord God in vain. You must walk in the awe and in sacred holiness of the Almighty. परमेश्वर के भय में तूने कैसे जीना है, परमेश्वर की पवित्रताई में कैसे जीवन जीना है, ये पहले 3 नियम हैं. Fourth one is that you keep the Sabbath holy, and the 5th one is thou must honor your father and mother. I told you, if you remember, the word for honor in original Hebrew means that you must spend money to take care of your father and mother. When they have become old and you think that they lost all the purpose, they have become useless, don't throw them into the old age home. You make initiative to serve them and love them and cherish them and take every care of them and spend money. That's particularly the Hebrew sense. Spend money on your parents. You know why Jesus condemned the Pharisees, the Sadducees, the high priest in the temple, the Levites in the temple, the entire religious system in Jerusalem? Because they were very corrupt. वो बहुत भ्रष्ट थे, इसलिए यहोवा प्रभु यीशु मसीह उन्हें डांटता है. आपको मालूम यहूदियों ने क्या सिस्टम बनाया था? यहोवा अपने कलाम में कहता है अपने माँ बाप की खिदमत कर, अपने घर में रख, सेवा कर, उन पे पैसा स्पेंड कर. तो फरीसियों ने क्या नियम बना दिया हैकल के लिए? एक यहूदी जवान, उसके माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, अब खांसते हैं शायद, वो अपनी नई जवान बीवी को लेकर आया है, वो अपने घर में आज़ादी से रहना चाहता है, वो नहीं चाहता कि बूढ़े माँ बाप को घर में रखे. अब बूढ़े माँ बाप को देख के एलर्जी होती है. ये वही है भाई जिन्होंने, ये वही माँ है जिसने अपनी कोख में तुझे 9 महीने रखा है, जिसने तुझे अपने सीने से, अपने आंचल से दूध पिलाया है, पाला पोसा बड़ा किया. ये वही बाप है. उसके हाथ देख, मेहनत करके तेरे लिए, उसके हाथ खुरदरे हैं, उसके चेहरे की झुर्रियाँ तेरे लिए पड़ी हैं. इसी माँ और बाप ने तुझे पढ़ा लिखा के बड़ा किया है और तुझे ये मुस्तकबिल, फ्यूचर दिया जो तेरे पास है. और अब तुझे लगता है कि वो बेकार है. तो ये यहूदी जवान क्या करता है? ये याजकों के पास जाता है हैकल में, उन्हें बोलता है मैं अपने माँ बाप को नहीं रख सकता. तो वो उसे एक लेटर लिख के देते हैं. उस लेटर का नाम है कोरबान. तो उसे कहते हैं कि जो तूने अपने माँ बाप की सेवा में पैसा लगाना था भाई, वो हैकल में इधर ला के हमें दे दे, इधर ले आ सारा पैसा. वो सारा पैसा याजकों को दे देते हैं, मतलब जो भी उसने देना है याजकों को दे देता है, और वो चिट्ठी अपने माँ बाप को दे देना कोरबान की. और वो बूढ़े माँ बाप अपना थैला झोला बांध के हैकल के अंदर आ जाएंगे और हैकल में से रोटी खाएंगे, वहीं रहेंगे. वो बूढ़े माँ बाप अपने नाती पोतों को देखना चाहते हैं, अपनी छोटी जो 3rd जनरेशन है उसके संग खेलना चाहते हैं. उनके दिल में एहसास हैं, इमोशंस हैं. वो अपने छोटे छोटे पोते पोतियों, नाती पोतियों के संग खेलना चाहते हैं, उनको किस्से कहानियाँ सुनाना चाहते हैं. लेकिन ये अधर्मी बेटा अपने माँ बाप की सारी खुशी को छीन लेता है. और कुर्बान का लेटर क्या है? वट एवर आई नीडेड टू डू फॉर यू आई हैव गिवन टू गॉड. जो
मैंने माँ बाप के लिए करना था वो मैंने यहोवा को अर्पण कर दिया। पढ़ा ना आपने मत्ती रचित सुसमाचार में, यीशु मसीह कंडेम करता है फरीसियों को कि तुम यहोवा की, आपको मालूम पहली तख्ती जो है, पहली टैबलेट, उसके अंदर जो नियम हैं वो यहोवा, वो ये सिखाते हैं कि हाउ वी बिल्ड रिलेशनशिप विद क्रिएटर गॉड। यहोवा आत्मा है, वो आपको दिखता नहीं है, आप उससे रिश्ता कैसे रखेंगे। वो पहली 5 आज्ञाएं हैं। पहली 3 आज्ञाएं एक्सप्लिसिटली यहोवा के प्रति हैं। जो चौथी आज्ञा है वो यहोवा की डिमेंशन है, रेस्ट, सैबत, उसके अंदर एंटर करने के लिए है। लेकिन उसके नीचे ही माँ बाप की खिदमत की आज्ञा है। अर्थात खुदावंद यहोवा ने जो अपने लिए आज्ञाएं दी इसराइल को, उसमें माँ बाप को भी जोड़ा हुआ है। तो आप जो रूहानी सेवा करना चाहते हैं ना, पहली तख्ती बताती है रूह, आत्मा में और सच्चाई में। पहली तख्ती बताती है आत्मा में कैसे इबादत करनी है। तो जो रूहानी काम है उसके अंदर ही जुड़ी है माँ बाप की सेवा। हालेलुया, हालेलुया। माँ बाप की सेवा ना करना बहुत बड़ा कर्स है, बहुत बड़ी लानत है। और बदरुओं के लिए आप बहुत बड़ा डोर खोलते हो जब अपने बुज़ुर्ग माँ बाप की खिदमत नहीं करते हो। यहोवा ने पहली तख्ती के अंदर 5वीं आज्ञा, पहली तख्ती ये दिखाती है यहोवा से आपका रिश्ता कैसे हो। दूसरी जो तख्ती है 6 से लेकर 10 जो दूसरी आज्ञाएं हैं वो ये बताती है कि इंसानों से हमारा रिश्ता कैसे हो। समझ रहे हैं आप? हाउ यू बिल्ड रिलेशनशिप विद गॉड एंड हाउ यू बिल्ड रिलेशनशिप विद वन अनदर। यहोवा से संबंध बनाने के लिए आपको पवित्र आत्मा चाहिए, वो आत्मा है, गॉड इज ए स्पिरिट। तो आप आत्मा के द्वारा उसके संग जुड़ेंगे, लेकिन एक दूसरे के संग सच्चाई से जुड़ सकते हैं। भाई और बहनों, मसीहों के अंदर सदाकत नहीं है। मैं बहुत सारे पास्टरों को, सेवकों को देखता हूँ जो पीठ में छुरा घोंपते हैं, जिनकी मैंने बहुत मदद की, सहायता की, बहुत काम किया, घर बनाए, चर्चेस बनाई, दिन रात जाके मैंने वचन सिखाया। वो ऐसे दगाबाज और झूठे हैं, उनको पता ही नहीं है कि खुदावंद की परस्तिश आत्मा और सच्चाई में होती है। तुम आत्मा में तो कर रहे हो, खोबा राबा 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 बहुत कर लेते हो, लेकिन आपको सच्चाई, सदाकत का पता नहीं है। तो समझिए इन परमेश्वर की गहरी बातों को। हालेलुया। अगर आप, वफादारी आपके अंदर नहीं है, किसी ने आपके लिए भलाई की है, आप उसके लिए बुराई बोते हो, आप कभी प्रभु से आशा मत रखें कि प्रभु आपको बरकत देगा। कभी ना रखें। जिसने आपके लिए आपके लिए जिसने अपना आप काट के आपके जीवन में बोया है। मैंने ऐसा किया कई बार, अपने परिवार का जो हिस्सा बनता था वो दूसरों के जीवन में बो दिया। हालेलुया। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मलाकी नबी नबूवत कर रहा है और हज्जई नबी नबूवत कर रहा है। ये 2 नबी हैं। ये दोनों नबी इज़राइल की नेचुरल दशा पे, उनकी भौतिक दशा क्या है। नेचुरली इज़राइल गिरा हुआ है, परवर्ट है, यहोवा से दूर है। यहोवा के हुक्म, यहोवा की विधियाँ उनके अंदर नहीं हैं। उन्होंने यहोवा की जगवेदियों को ढाया है और बालीमों की, अश्तोरेत की जगवेदियों को खड़ा किया है। उनका आत्मिक जीवन अंधकार में है और उनका नैतिक जीवन का पतन हो चुका है। तो ये नबी जो हैं हज्जई और मलाकी, उनकी नेचुरल परिस्थिति को देख के नबूवत करते हैं। लेकिन जकरिया नबी उस समय नबूवत कर रहा है। कौन बंदे हैं खुदा के 3 की फिगर? एजरा, नेहेमिया और ज़रूब्बाबिल। एजरा जो है वो याजकों की तैयारी कर रहा है और वो रोता है प्रभु के आगे, क्योंकि याजक इतने भ्रष्ट हैं। जो प्रभु का नाम लेने वाले थे, जो प्रभु के मार्ग लोगों को सिखाने वाले थे, जो परमेश्वर का कलाम लोगों को सिखाने वाले थे, लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले थे, वो इतने करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं, व्यभिचारी हैं। तो वो यहोवा के आगे प्रार्थना करता है। उनको अलग करना, लेवियों को, याजकों को शुद्ध करना, यहोवा के लिए मखसूस करना, ये बड़ा काम है, क्योंकि हैकल से पहले याजकों की तैयारी ज़रूरी है। ज़रूब्बाबिल यहोवा की हैकल बनाता है।
नेहमाया जो है वो दीवारें खड़ी कर रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया कि सनबलाट और तोबिया द हॉर्नाइट और अरबी लोग इज़राइल के ख़िलाफ़ लड़ाई कर रहे हैं, शत्रु उनके विरोध में खड़े हैं। मैंने आपको कल बताया था तोबिया का मतलब होता है ठट्ठे करने वाली आत्मा। इजरायलियों को ठट्ठों में उड़ाया जा रहा है, मजाक कर रहे हैं उनका जब वो हैकल बना रहे हैं और शहर पनाह बना रहे हैं। और सनबलाट का मतलब होता है एनिमी इन सीक्रेट, छिपा हुआ दुश्मन, गुप्त वैरी। तो कल मैंने आपको बताया कि इनकी दशा बुरी इसलिए है, हैकल इसलिए नहीं बन पा रही, शहर पनाह इसलिए नहीं बन पा रही, यहोवा का काम इसलिए नहीं हो पा रहा है। कल मैंने आपको बताया जकरिया नबी की पुस्तक 3 अध्याय में से उसकी वजह यह है कि इज़राइल के विरुद्ध शैतान ने मुकदमा किया है सुप्रीम कोर्ट में। जकरिया नबी की पुस्तक उसके 3 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो ये चौथी फिगर है यहाँ पे। एजरा है, नहेमिया है, ज़रूबाबिल है। ज़रूबाबिल जो है वो सुलेमान की लाइन में से निकला है जिस पे कर्स आ गया, जो ये अगर आपको याद होगा यहोवा ने उस आखिरी राजा से अपना नाम भी छीन लिया। उसका नाम था याह कोनिया, यहोवा ने याह हटा लिया, उसका नाम कोनिया रह गया और यहोवा ने उसको श्राप दिया। यहोवा ने कहा ये तेरी औलाद में से कोई भी आगे नहीं निकलेगा और सिंहासन पे नहीं बैठेगा, श्राप दे दिया। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि दाऊद के साथ यहोवा का ये करार है कि दाऊद की गद्दी पे हमेशा कोई ना कोई वारिस बैठेगा और उसका राज्य हमेशा के लिए कायम रखेगा यहोवा। तो सारी प्रोफेसीज, परमेश्वर के करार, प्रोमिसेस, सबको समझें, पूरे कलाम को, केवल एक ही आयत को निकाल के उस पर प्रचार ना करने लग जाएं। पूरा बाइबल समग्र दृष्टि से समझें, तब आपको पता लगेगा। एक आयत को लेके आप लोगों को ब्लेसिंगें, बरकतें बांटने की दुकान खोल लेते हो तो ये बहुत डेंजरस काम है। पूरा वचन समझिए भाई और बहनों। प्रेरित पौलुस कहता है इफिसियों के एल्डर से, उनके आगे घुटने टेक के प्रार्थना करता और रोता है, कहता मैंने आंसू बहा बहा के दिन और रात तुम्हारे बीच में प्रार्थनाएं की हैं और मैंने दिन रात तुम्हें प्रभु का वचन सिखाया है और मैंने पूरी परमेश्वर की मनसा तुम्हें सिखाई है। केवल एक ही चीज़ नहीं सिखाई, चंगियाई वाला कलाम, छुटकारे वाला कलाम या बरकतों वाला कलाम, सारी चीज़ें सिखाई हैं मैंने तुम्हें। हालेलुया। और रो के क्या कहता है? कहता लेकिन मैं आत्मा में देखता हूँ मेरे जाने के बाद तुम्हारे में भेड़िए आ जाएंगे जो भेड़ों को खा जाएंगे। तो यहाँ पे केस चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि तीसरा वचन जकरिया 3:3 पढ़ें। नाउ जोशुआ वाज क्लोथ्ड विद फिल्दी गारमेंट्स एंड स्टूड बिफोर द एंजल। मैंने आपको कल बताया था यहाँ पे जो एंजल के रूप में खड़ा है वो यीशु मसीह है और यीशु मसीह के राइट हैंड पे शैतान खड़ा है, हाथ शैतान, और वो दोष लगा रहा है, मुकदमा कर रहा है और वहाँ पे यहोवा पिता का सिंहासन लगा है। तो यीशु मसीह यहोवा, पिता यहोवा, शैतान से क्या कहता है यीशु मसीह? दूसरे वचन में द लॉर्ड सेड अनटू सेटन, यहोवा यीशु शैतान से क्या कहता है? द लॉर्ड रिब्यूक दी, कि यहोवा पिता तुझे डांटे शैतान। और क्या कहता है कि ये यहोशू जो खड़ा है ये वो लकड़ी है जो आग से निकाली गई है। और आमोस नबी 4 अध्याय के 11 वचन में ये बात लिखी है। हालेलुया। जिसे यीशु मसीह स्वर्ग में बोल रहा है। अब ये सारी बात पृथ्वी पे नहीं चल रही, स्वर्ग में चल रही है। काम धरती पे हो रहा है, पृथ्वी पे, शहर पनाह का। अपोजिशन पृथ्वी पे आ रही है सनबलाट से, तोबिया से, अरबी लोगों से, और पृथ्वी के ऊपर समस्याएं खड़ी कर रहा है शैतान। उसने याजकों को व्यभिचार में गिराया है, गंदे कामों में। उन्होंने उन औरतों से शादी की है जिनका ब्लड मिक्स्ड है, जिनके अंदर शैतानी बीज है। इज़राइल के याजकों के असली बीज को शैतान ख़त्म करना चाहता है। ये सारी चीज़ें पृथ्वी पे क्यों हो रही हैं? क्योंकि इज़राइल के पाप की वजह से स्वर्ग में मुकदमा चल रहा है। आपके परिवार में क्या घट रहा है? आपकी संतान को शैतान खींच के ले जा रहा है। आपका कारोबार, बिजनेस के में आप असफलता देख रहे हो। आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको ऐसे लग रहा है कि दरवाजे बंद हो गए हैं। आपको ऐसे लग रहा है जैसे आपके चारों ओर दीवारें खड़ी हैं। आपको यूँ लग रहा है कि आपका शरीर की दशा गिरती जा रही है और डॉक्टर्स क्लिनिकली बहुत बुरी रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। आपके जीवन के हर पहलू में आपको अंधेरा दिख रहा है। आपको मालूम वजह क्या है?
आपके पाप और आपकी बदकारियों की वजह से आपके विरुद्ध में मुकदमा चल रहा है, हेवन में केस चल रहा है। शैतान आप पे दोष लगा रहा है। शैतान यहोवा के आगे दोष लगाता है, किस लिए? ताकि यहोवा उनके खिलाफ जो मुकदमा है, यहोवा उनके खिलाफ फैसला दे। शैतान अय्यूब के खिलाफ जाके केस करता है, उकसाता है। क्या कहता है कि एक बार सब कुछ ले ले, जो तूने बरकतें इसको दी है ना, प्रॉस्पेरिटी, ये प्रॉस्पेरिटी की वजह से तेरे को प्रभु प्रभु करता है, प्रॉस्पेरिटी ले ले, फिर तेरे नाम को ये लानत देगा। शैतान ऐसे एक्यूज़ करता है। जो आपके जीवन में नेचुरली घट रहा है, वो सुपर नेचुरल दुनिया में जो हो रहा है उसकी परछाई है। लेकिन लोग क्या करते हैं? लोग नीचे लहू और मांस से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। आपकी लड़ाई लहू मांस से नहीं है। एफिसियों 4:12 आपका युद्ध है। सेकंड हेवन में लड़ाई चल रही शैतानी, और थर्ड हेवन में यहोवा के सिंहासन के आगे, यहोवा के सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? उसके कपड़े गंदे हैं, इज़राइल पाप में डूबा है, वस्त्र गंदे हैं, इसलिए शैतान दोष लगा रहा है। अगर आपके कपड़े उज्जवल हैं, शैतान आप पे दोष नहीं लगा सकता। अगर आप यीशु मसीह के लहू में धुले हैं, यीशु मसीह के लहू में चलते हैं प्रतिदिन, आपके ख्याल जो है ना, दिमाग के विचार ख्याल, ये यीशु मसीह के लहू के नीचे छिपे हुए हैं। अब आप पुरानी तरह नहीं सोचते। गंदे ख्याल, गंदा जहन, गंदी सोचें, गंदी ख्वाब गाएं, ये नहीं आपकी। अब आपका चाल चलन बदल गया है। आप दुष्टों की मंडली में खड़े नहीं होते, आप बुरे लोगों के राह में चलते नहीं, आप ठट्ठा करने वालों के संग बैठते नहीं। परमेश्वर ने आपका जीवन अंदर से बदल दिया है। अब आपकी देह जो है, शरीर है, इसको आप रोज़ क्रूस पे चढ़ाते हो, इसकी ख्वाहिशों सहित, इसकी वासनाओं को क्रूस पे चढ़ा देते हो, और आप ये जानते हो कि आप जीवित नहीं, मसीह आप में जीवित है। और आप जो जीवन जीते हो, यीशु मसीह के लिए जीते हो। और आप जो जीवन जी रहे हो, आप विश्वास से जी रहे हो। By the faith of the Son of God, you are living by the faith of the Son of God. You are not living your life by an ordinary faith. You live by the faith of the Son of God. Paul says in Philippians, he says, "For I have been crucified with Christ on the cross. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life that I now live, I live by faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me." हालेलुया। और आप अपने आप का इनकार करते हो प्रतिदिन, और आप तंग फाटक से प्रवेश करके तंग मार्ग पे चलते हो प्रतिदिन, तो आपके खिलाफ शैतान मुकदमा नहीं कर सकता। तो सुपर नेचुरल दुनिया में जो घटता है, उसकी परछाई आपको नेचुरल दुनिया में दिखती है। आपका जीवन पृथ्वी पे कैसा है, ये स्वर्ग में जो आपके जीवन के विषय में चल रहा है, उसकी परछाई है। ये हाई प्रीस्ट है यहोशुआ। कौन है हाई प्रीस्ट? आपको मालूम, जाशुआ जो ये शब्द है, याशुआ, ये वही है, यहोशुआ, जीसस। इसकी जो ग्रीक ट्रांसलेशन है वो है ईसोस क्रिस्टोस, जीसस अंग्रेजी में, लेकिन इस नाम का मतलब है साल्वेशन, मुक्ति। हालेलुया। अब देखिए, दो याजक हैं यहाँ पे स्वर्ग में इस समय। एक याजक है यहोशुआ, और दूसरा याजक जो यहोवा के दूत के रूप में खड़ा है, उसका नाम भी यहोशुआ है। दोनों यहोवा के याजक हैं। एक ज़मीनी याजक है, दूसरा मलकी सिदक सरीखा, यहोवा के सिंहासन, यहोवा की हैकल का सदा काल के लिए याजक है, जिसकी याजक की पदवी कभी समाप्त नहीं होगी, जिसकी राजा का सिंहासन हमेशा हमेशा कायम रहेगा। वो है खुदावंद यीशु मसीह। आपको मालूम, शैतान एक शक्तिशाली वैरी है, हल्के में मत लेना आप। परमेश्वर ने जितने एंजल बनाए, उनमें से सबसे पावरफुल बीइंग है वो। समझ रहे हैं आप? इज़राइल बदकारी में है, मूर्ति पूजा में है, पृथ्वी की कौमों के जैसे गंदे काम करता है इज़राइल, और यहोवा को त्याग गया है, सेक्सुअल इमोरालिटी में पड़ा है।
हालेलुया। तो हज्जई समय में देख के बता रहा है, लेकिन जकरिया समय से परे देख रहा है, वो आत्मा में देख रहा है। वजह क्या है? क्योंकि महायाजक गंदे कपड़े पहन के खड़ा है। ये दो याजक हैं, महायाजक, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। एक इज़राइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक यहोवा की स्वर्गीय हैकल में हमेशा के लिए याजक है, मलकीसिदक से लिखा है। यही दो गवाह हैं। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय का 10 वचन मैं आपको पढ़ के देना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसका 10 वचन सुनिए क्या लिखा है यहाँ पे। And they shall dwell upon the earth, shall rejoice over them. They that dwell upon the earth shall rejoice over them, and make merry, and shall send gifts one to another, because of these two prophets tormented them that dwelt on the face of the earth. ये जो दो गवाह हैं जो पृथ्वी पे आएंगे, दो गवाह, ये सच्चा कलाम देते हैं, और पृथ्वी पे रहने वाले लोगों ने शैतान की मोहर लगा ली है। वो शैतान की बातें सुनते हैं, शैतान के पीछे चलते हैं। जो पृथ्वी के लोग हैं वो बुरी तरह शैतानी कामों में मुब्तला हैं, डूबे हैं शैतानी कामों में। जब ये दो गवाह आके यहोवा का सच्चा कलाम सिखाते हैं तो उन्हें ऐसे लगता है जैसे हमें टॉर्मेंट कर रहे हैं ये लोग। ये लिखा है, दीज टू प्रॉफिट्स टॉर्मेंटेड देम दैट ड्वेल्ट ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। क्योंकि ये सच्चा कलाम देते हैं तो जो झूठ में रहने वाले उन्हें पसंद नहीं है सच्चा कलाम। और क्या होता है? एंड आफ्टर 3 days and half द स्पिरिट ऑफ लाइफ फ्रॉम गॉड एंटर्ड इनटू देम। ये लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, एक दूसरे को गिफ्ट बांट रहे हैं पृथ्वी के लोग। क्यों? क्योंकि शैतान ने इन दो गवाहों को मार दिया है। जो दो गवाह यहोवा के नीचे जाते हैं पृथ्वी पे गवाही देने, शैतान ने इन्हें मार दिया। 9 वचन पढ़िएगा इसका, प्रकाशित वाक्य 11 का प्रकाशित वाक्य और इसके 11 का 9 वचन पढ़िएगा। शैतान ने मारा है और इनकी लोथें पृथ्वी पर पड़ी हुई हैं, 3 दिन तक पड़ी रहती हैं। और पृथ्वी के लोग बड़े खुश होते हैं क्योंकि पृथ्वी के लोगों को इन सच्चे खुदा के खादमों के मुंह में से जो कलाम निकलता था उससे वो टॉर्मेंट होते थे। समझ रहे हैं? आज भी कुछ लोग टॉर्मेंट महसूस करते हैं प्रभु के सच्चे कलाम से, क्योंकि उन्हें कानों की खुजली मिटाने वाले गुरु चाहिए। जो वचन में लिखा मूथोस ग्रीक भाषा में, जो दंत कथाएं इन्हें सिखाएं। और लिखा है बदरुओं की तालीम दें, डिडास्कलिया डायमोनियन। डिडास्कलिया का मतलब होता है शिक्षा, डायमोनिया जहाँ से डीमन, बदरुएं शब्द निकला है, लेकिन ये असली वर्ड है डियामोनिया। डिया का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, और मोनिया का मतलब फॉर्चून, फॉर्चून बांटना लोगों को। भावी कहना, तुम्हारे बैंक अकाउंटों में पैसा आ रहा है, तुम्हारे रियल एस्टेट मिलने जा रही है, तुम्हें गाड़ियाँ मिलने। अरे भाई, तेरे को यहोवा ने कुछ नहीं कहा ऐसा, तू अपने मन से घड़ के बोलता जा रहा है। और अब बदरुएं तेरे मुंह में वो कलाम डाल रही हैं, शैतानी आत्माएं। ये हैं झूठे नबी। वो ऐसी अट्रैक्शन वाली चीज़ें आपको बताएंगे जो मटीरियल होंगी, शारीरिक होंगी, और आप उनके पीछे भागे जाओगे और विनाश के खड्डे में जाके गिरोगे। तो इन सच्चे नबियों से लोगों को टॉर्मेंट होता था, लेकिन यहोवा का रूह इनके अंदर आता है और ये जी उठते हैं दोबारा। हालेलुया। ये जकरिया नबी की किताब में, आपको मालूम, पुराना नियम सारा नए नियम में से निकला है। नया नियम सारा पुराने नियम में से निकला है, और पुराने नियम के अंदर सारा नया नियम छिपा हुआ है। ये अलग अलग नहीं है, जैसे कई झूठे नबी बताते हैं कि पुराना नियम तो ख़त्म हो गया, मैं तो नए नियम में हूँ, मैं लॉ के अंडर नहीं हूँ, मैं तो ग्रेस के अंडर हूँ। ऐसा नहीं है। कई झूठे प्रचारक अमेरिका के फेमस प्रीच करते हैं गॉड ब्रोक द लॉ, और बड़ी कैची एनोलॉजीज लोगों को देते हैं। वो कलाम पे आधारित नहीं है वो कहानियाँ, किससे। तो सच्चे कलाम की ओर मुड़िएगा। प्रकाशित वाक्य के अंदर 800 से ज़्यादा
इल्यूजन्स हैं ओल्ड टेस्टामेंट में से। हालेलुया। पुराना और नया दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। यहोवा परमेश्वर ने पुरानी वाचा इज़राइल के साथ बांधी, नई वाचा किनके साथ बांधी? पढ़ लीजिए आप यिर्मयाह नबी की पुस्तक 31 अध्याय 31, 32, 33, 34। प्रभु यहोवा कहता है, मैं नई वाचा इज़राइल के साथ और यहूदा के साथ बांधूंगा। जो नया नियम परमेश्वर ने बांधा यीशु मसीह के लहू में, यीशु मसीह कहता है मेरा मांस खाओ और मेरा लहू पियो। मेरा लहू नए नियम की वाचा है। ये लहू की नए नियम की वाचा भी इज़राइल के साथ ही बांधी गई है, अन्य जातियों के साथ नहीं बांधी गई। अन्य जातियों को बीच में शामिल किया, जैतून के वृक्ष के अंदर हमें रोप दिया गया है। हालेलुया। तो सच्चा कलाम समझिए क्या कहता प्रभु का सच्चा कलाम। हालेलुया। तो महायाजक ही गंदा है, उसके कपड़े डर्टी हैं। जिसने आपको यहोवा के सिंहासन के आगे जाके रिप्रेजेंट करना है, जिसके द्वारा आपकी प्रार्थनाएं यहोवा तक पहुंचनी हैं, जिसके द्वारा आपकी भेंटें, कुर्बानियाँ, नजराने यहोवा तक पहुंचने हैं, जो एक बीच में चैनल है आपकी यहोवा तक रिसाई कराने का, वो चैनल स्वयं में ही पल्यूट है, डर्टी है, गंदा है। हालेलुया। तो प्रभु ने क्या किया? यहाँ पे एक और याजक खड़ा है, ये यहोशुआ खड़ा है जो पृथ्वी का याजक है, दूसरा यहोशुआ खड़ा है जो अनंत काल के लिए हमारा महायाजक है। हालेलुया। जो जकरिया 3 अध्याय में किस रूप में खड़ा है? मलाख हा एदोनाय, मलाख हा यहुआ, जो यहोवा के दूत के रूप में खड़ा है। जो दूसरा यहोवा है, पहला यहोवा पिता सिंहासन पे बैठा है, दूसरा यहोवा खड़ा है और क्या कहता है शैतान से? पुत्र यहोवा शैतान से कहता है शैतान, पिता यहोवा तुझे झिड़के। और पुत्र यहोवा यीशु मसीह क्या कहता है? हालेलुया। पुत्र यहोवा यीशु मसीह कहता है, यहोशुआ गंदे वस्त्र पहने खड़ा था, किसके आगे? जीसस के आगे। नाउ जोशुआ वाज क्लोथ्ड इन फिल्दी गारमेंट्स एंड स्टूड बिफोर द एंजल ऑफ द लॉर्ड। हिब्रू लोग इसे मेटाट्रॉन कहते हैं। ये थियोफनी है, यीशु मसीह का जलाली प्रगटीकरण है। मरियम की कोख में देह धारण करने से पहले भी जलाली यीशु मसीह है। ये यहोवा, दो यहोवा है यहाँ पे, यहोवा पिता और यहोवा पुत्र। और यहोवा पुत्र के आगे खड़ा है तो क्या लिखा है? एंड ही आंसर्ड एंड स्पेक अनटू दोज दैट स्टूड बिफोर हिम। तब इस एंजल ने, मेटाट्रॉन ने, ये यहोवा पुत्र है ये एंजल, उसने क्या कहा? उनसे कहा जो उसके सामने खड़े हैं, एंजल्स। क्या कहा? टेक अवे द फिल्दी गारमेंट फ्रॉम हिम, इसके गंदे कपड़े उतार दो। एंड अनटू हिम ही सेड, और उससे उसने क्या कहा? किसने? इस एंजल ने। ये एंजल साधारण एंजल नहीं है, ये है मलाख हा एदोनाय, मलाख हा यहुआ, ये है मेटाट्रॉन, ये है प्रभु यीशु मसीह जो एंजल के रूप में खड़ा है। क्या कहता है? ये यहोशू से कहता है, बिहोल्ड आई हैव कॉज दाइन इनिक्विटी टू पास फ्रॉम दी, मैंने तेरे अधर्म को तुझसे हटा दिया है। अवान वर्ड है यहाँ पे। इनिक्विटी गहरा पाप है। इनिक्विटी वो बदकारी है जो आपके डीएनए में है। इनिक्विटी वो पाप है जो आपके पिताजी ने भी किया, आपके दादाजी ने भी किया, आपके परदादा जी ने भी किया, आपके परदादा के परदादा ने भी किया, आपकी माँ ने किया, आपकी नानी ने किया, आपकी प्रनानी ने किया, आपकी प्रनानी की प्रनानी ने किया, जो आपके डीएनए में आ गया है। ये इनिक्विटी है इज़राइल की। जेनरेशनल कर्स बोलते हैं इसको। मैंने आपको इसके ऊपर कम से कम 20 घंटे सिखाया है प्रभु के कलाम से। ये इनिक्विटी है जो आपके अंदर, ये आपकी सेकंड नेचर है, ये डिफॉल्ट मोड है जिसमें आप ऑपरेट करते हो। ये आपकी वो नेचर नहीं है, वो फर्स्ट नेचर है यीशु मसीह की, जिसे फिलिपियों की पत्री में प्रभु का दास पौलुस कहता है, लेट दिस माइंड बी इन यू दैट वाज इन क्राइस्ट जीसस। जो स्वभाव मसीह का था वो तुम्हारा भी हो, जो नेचर जीसस की थी वो तुम्हारी भी हो, क्योंकि तुम पाप में गिरे आदम की नेचर पे चल रहे हो। तो ये नेचर चेंज कर रहा है यहां पे यीशु मसीह, डीएनए को धो रहा है। कहता क्या कहता है? सेइंग कि उसके कपड़े गंदे हटा दो, बाहरी बदकारी को हटा दो। ये एक बाहरी पाप है, बाहरी कपड़े गंदे हैं।
एक बारी पाप है जिसे पीछा बोलते हैं, खता बोलते हैं, लेकिन भाइयों और बहनों जो डीएनए के अंदर अंदरूनी बदकारी है वो ज़्यादा डेंजरस है। कलीसियाओं के अंदर इस अंदरूनी चीज़ के ऊपर शिक्षा नहीं है। कलीसियाओं के अंदर ये जो अंदरूनी काम होना है ना, जनरेशन टू जनरेशन जो बदकारियाँ, जनरेशन टू जनरेशन जो पीछा है, इनिक्विटी है, ट्रेसपासेस हैं, जिन्होंने आपकी नेचर को क्रुकेड बना दिया है। क्रुकेड है अंदर से नेचर आपकी। आपको मालूम, यीशु मसीह ने नथानियल को अपनी ओर आते देखा और यीशु मसीह खुश हुआ और यीशु मसीह ने कहा, बिहोल्ड एन इज़राइलिट इन होम देयर इज नो गाइल। इसके अंदर कपट नहीं है। ये कपट, छल और ये अंदरूनी जो बुरी फितरत है। प्रभु क्या कहता है, बिहोल्ड आई हैव कॉज दाइन इनिक्विटी टू पास फ्रॉम दी एंड आई विल क्लोथ दी विद चेंज ऑफ रेमेंट। मैं तुझे नए वस्त्र पहनाता हूँ। भाइयों और बहनों, अवान को, अंदरूनी बदकारी को, जनरेशनल कर्ज को कौन माफ़ कर सकता है? बताइए मुझे। केवल प्रभु यीशु मसीह, और कोई नहीं कर सकता। केवल यहोवा पिता आपकी अंदरूनी बदकारियों को धो सकता है। आप तो बाहरी पापों के ऊपर ही बातें करते हो। अभी जो बाहरी गारमेंट है ना, कपड़े गंदे थे बाहर से पहने, प्रभु एंजल को कहता उतार दो, इसको नए कपड़े दो। प्रभु कहता मैं तुझे नए कपड़े देता हूँ। वो कपड़े हैं यीशु मसीह के लहू में रंगे हुए। जो कपड़े हम पहनते हैं वो यीशु के लहू में रंगे हुए हैं। उन कपड़ों की मेरिट है यीशु मसीह का खून। उसके खून से रंगे वस्त्रों में हम चलते हैं। मैं इनविजिबल हूँ, मुझे शैतान बदरुएं नहीं देख पाती, क्योंकि मैं लहू के रंगे कपड़ों में, मेरे कपड़े लहू में डाई किए हुए हैं, बर्रे के लहू में। हालेलुया। जब वो अंधकार की ताकतें मुझे देखती हैं, उन्हें यीशु का लहू दिखाई देता है और वो डरती हैं और मेरे से दूर भाग जाती हैं। मेरी खूबी थोड़ा है कोई कि मैं कोई बड़ी ख़ास चीज़ हूँ, बहुत बड़ा अपोस्टल हूँ, बहुत बड़ा प्रॉफिट हूँ, मैं एलिया जैसा, मुझे पापा को, डैडी को, मैं क्या हूँ? कुछ भी नहीं हूँ। मैं कोई बिशप नहीं हूँ, कोई आर्च बिशप नहीं हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये टाइटल। कोई चीफ पास्टर नहीं हूँ, ओवर आर्चिंग बिशप नहीं हूँ, हिज होलीनेस, वो फलाना ढिमका, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल उसके लहू के कपड़ों में ढपा हुआ हूँ और मैं 24/7 ताउम्र जब पृथ्वी पे रहूँ उसके लहू के डाई किए कपड़ों के अंदर छिपा रहूं। यही मेरी आरजू है, यही मेरी तमन्ना है। और मेरे को जो काम दिया प्रभु ने कि वो लोग खड़े करने हैं जो यीशु मसीह के खून में डाई किए कपड़ों के अंदर ज़िंदगी गुजारें। ऐसी जलाली कलीसिया तैयार करनी है। ये काम मुझे दिया गया है। पूरे विश्व में ये काम प्रभु का करना है। ऐसी जलाली दुल्हन को तैयार करना है। इसलिए मुझे मेरे नाम के आगे कोई दिखावे की चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरी पहचान थोड़ा है जो मैं आगे लगाता हूँ, बिशप, रेवरेंड, फलाना ढिमका। वो मेरी कोई पहचान नहीं है। मेरी असली पहचान मेरे प्रभु यीशु मसीह के अंदर छिपी हुई है। मेरी आईडी लॉक है यीशु मसीह में। आप मेरी आईडी नहीं देख सकते। वचन में लिखा है, संत पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में कहता है, जो आत्मिक बंदा है, जो रूह में चल रहा है, उसे कोई नहीं देख सकता। वो सबको परख सकता है लेकिन उसे कोई नहीं परख सकता। तो बाहरी कपड़े भी उतार दिए गए, लेकिन अंदरूनी इनिक्विटी को यीशु मसीह का लहू धोता है। और प्रभु क्या कहता है उसको? प्रभु कहता है, देख मैंने तेरी इनिक्विटी को हटा दिया है, अब मैं तुझे अपने लहू में रंगे कपड़े देता हूँ। और क्या कहता है 5 वचन, एंड आई सेड लेट देम सेट ए फेयर माइटर अपॉन हिज हेड। अब पगड़ी रखी जा रही है, सफ़ेद अधिकार की पगड़ी, अथॉरिटी की पगड़ी रखी जा रही है। सो दे सेट ए फेयर माइटर अपॉन हिज हेड एंड क्लोथ हिम विद गारमेंट्स एंड द एंजल ऑफ द लॉर्ड स्टूड बाय। और यीशु मसीह वहीं खड़ा है। याजक को अंदर से बाहर से धो दिया गया है। ये एंग्री इमोजीज कौन भेज रहा है? फिर प्लीज़ चेक करें जरा, ये एंग्री इमोजीज भेजने वाला कौन है? प्लीज़ आइडेंटिफाई दिस पर्सन। हालेलुया। तो यीशु मसीह वहाँ खड़ा है। हालेलुया। तो क्या लिखा है 6 वचन में? एंड द एंजल ऑफ द लॉर्ड प्रोटेस्टेड अनटू जाशुआ। ताकीद करके यहोशू से
ये जलाली दूत क्या कहता है, दस सेथ द लॉर्ड ऑफ होस्ट, इफ़ दाउ विल्ट वॉक इन माई वेज। अब देखिए, उसको रेस्टोर कर दिया गया महायाजक को, तो प्रभु क्या कह रहा है अब? प्रभु कह रहा है, इफ़ दाउ विल्ट वॉक इन माई वेज, अगर तू मेरे मार्गों में चलेगा, इफ़ दाउ विल्ट कीप माई चार्ज, अगर तू मेरी आज्ञाओं को पूरा करेगा, जो मैं तुझे सिखाऊंगा तू इज़राइल को सिखाएगा, जो मेरे हुक्म मेरी विधियां होंगी, सच्चा कलाम सिखाएगा, क्रुकेड कलाम नहीं, कलाम को स्पिन करके नहीं, ठगी करने के लिए, बिजनेस करने के लिए कलाम को तोड़ मरोड़ के नहीं, मेरे सच्चे कलाम को सिखाएगा। देन दाउ शेल्ट ऑल्सो जज माई हाउस, तो मैं क्या करूँगा? ये सुप्रीम कोर्ट लगा हुआ है, यहाँ पे बहुत सी जुडिशरी बैठी हुई हैं, यहाँ पे डिवाइन कौंसल बैठी हुई हैं। प्रभु कहता है मैं तुझे यहाँ बुलाया करूँगा। किस लिए जाएगा महायाजक? इस्राएली कौम के मुकदमे लड़ने के लिए। जब शैतान किसी विश्वासी, किसी संगति के भाई, किसी इजरायली के विरोध में मुकदमा दायर करेगा, तो मैं तुझे अधिकार दूंगा, तू आके उसको डिफेंड करेगा। जज माई हाउस एंड ऑल्सो कीप माई कोर्ट, तू मेरी जुडिशरी में, कोर्ट रूम के अंदर आएगा। एंड आई विल गिव दी प्लेसेस टू वॉक अमंग दीज दैट स्टैंड बाय, तो मैं तुझे अधिकार दूंगा। यहाँ पे जो जलाली दूत खड़े हैं, यहाँ पे जो कैरुबीम हैं, यहाँ पे जो सराफीम हैं, यहाँ पे जो ओफनीम हैं, यहाँ पे जो प्राचीनों की मजलिसें लगी हैं, यहाँ जहाँ पे 24 बुज़ुर्ग बैठते हैं, जहाँ पे 7 आत्माएं सिंहासन पे विराजमान हैं, जहाँ पे राजाओं के सिंहासन लगे हैं, जहाँ पे वॉचर हैं, अय्यार, वो वॉचर जो फैसला लेते हैं, जिन्होंने नबूकदनसर के विरोध में फैसला लिया और नबूकदनसर को जानवर बना दिया, वो अय्यारों की कौंसल है। यहाँ पे अय्यार हिब्रू वर्ड है, वॉचर, उनके बीच में तुझे चलने फिरने के लिए मैं बुलाऊंगा। हालेलुया। आपको मालूम आपकी पदवी कितनी बड़ी है? आप शाही याजक हो, रॉयल्टी भी हो, रीगल प्रीस्ट हो, आप राजा भी हो और आप याजक भी हो। पुराने नियम में ये 2 पदवियां कभी किसी एक बंदे को नहीं मिली। एक राजा था उज़ा, वो राजा था, उसने याजक बनने की कोशिश की, यहोवा को धूप दुखाने चला गया, यहोवा ने कोड़ से मार दिया उसको, सारी उम्र कोड़ी रहा जब तक मरा नहीं। आपको उसने याजक भी बनाया और किंग भी बनाया। आपको मालूम हमारी जो याजक की पदवी है वो किंगली है, रजवाड़े याजक हैं हम यीशु मसीह के, और हम आत्मा में असेंड कर सकते हैं, यहोवा के सिंहासन पे चढ़ सकते हैं। परमेश्वर आपको विधियां देगा, कोर्ट रूम में कैसे जाना है, कोर्ट रूम में कैसे रिप्रेजेंट करना है, कोर्ट रूम में कैसे विश्वासियों के लिए प्रार्थना करनी है आपने जाके, कोर्ट रूम में कैसे इज़राइल के मसलों के लिए प्रार्थना करनी है, कोर्ट रूम में कैसे यहोवा के आगे कौमों को मांगना है। 2 ज़बूर पढ़ें, 2 ज़बूर में प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है मांग, मैं पृथ्वी की कौमें तुझे मिरास होने के लिए दे दूंगा। कलाम को पढ़ें, आपको बुद्धि देगा यहोवा मांगना क्या आपने। आप मांगते हो बेकार की चीज़ें, प्रभु कहता है कौमें मांग, पृथ्वी की मैं तुझे मिरास के लिए दूंगा। मांगे उससे कि यहोवा फिलिपीन दे, इंडोनेशिया दे, जकार्ता दे, बाली दे, किरीबाटी दे, न्यूजीलैंड दे, बेनिन दे, घाना दे, कंबोडिया दे, मालदीव दे, इंडिया दे, पाकिस्तान दे, चाइना दे, युगांडा दे, यूएस दे, कनाडा दे। मांगे उससे, वो देगा आपको, पृथ्वी की कौमें आपकी मिरास होने के लिए। मैं जब प्रभु में आया, मैं एक सेमिनार में गया, भी मैं बिल्कुल ही नया आया था, वहाँ पे दुनिया के अंदर कैसे प्रचार करना है ये सिखाने वाले सेवक आए हुए थे, और वहाँ पे एक किताब बिक रही थी, उस किताब का नाम था ऑपरेशन वर्ल्ड। उस किताब के अंदर एक बहुत बड़ा डबल बेड के ऊपर आने वाला मैप था, वर्ल्ड मैप। वो किताब ये बताती थी कि पृथ्वी के देशों के लिए दुआ कैसे करनी है। तो जब मैं प्रभु में आया भाई और बहनों, उस समय शायद 206 देश थे पृथ्वी पे, 206 थे या 202 थे। मैंने सब देशों के विषय में अध्ययन किया, उसमें हर देश के बारे में लिखा था कि यहाँ कौन सा धर्म है, कौन सा पंथ है, कौन सी जाति के लोग हैं, क्या लोगों की भाषा है, कितनी पॉपुलेशन है,
कैसी गवर्नमेंट है यहाँ पे, कौन कौन सी बदरुएँ हैं, कौन कौन से बंधन हैं लोगों के अंदर, सब मैंने स्टडी किया। और मैं उस मैप को बिछाता था और मैं उपवास रखता था हफ्ते में 2 दिन। और जब मैं उपवास रखता था, मैं मैप बिछा के और प्रभु के आगे प्रार्थना करता था। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे आंसू गिरते थे। मैं पृथ्वी के देश देश का नाम लेके प्रभु से मांगता था कि प्रभु ये देश यीशु मसीह को दे दे। यीशु मसीह ने जो सलीब पे दुख भोगा है, उसका फल यहोवा यीशु मसीह को कैसे देगा? यीशु मसीह अब पृथ्वी के देश यीशु मसीह के हवाले कर देगा। पृथ्वी के कौमों कौमों के लोग यीशु मसीह की सेवा करेंगे, उसकी उपासना करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसके आगे तोहफे लेके आएंगे। पृथ्वी के राजा, पृथ्वी के नोबल उसके चरणों में घुटने टेकेंगे, उसकी हमद, उसकी स्तुति करेंगे। पृथ्वी, आकाश, अंबर, तारे और पताल सब यहोवा की हमद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। टापू यीशु मसीह के लिए गाएंगे, झरने, चश्मे, समुद्रों का पानी यीशु मसीह के लिए गाएगा। धरती गाएगी, पवन गाएगी, पेड़ पौधे वनस्पति गाएगी, आकाश में चहचहाते पंछी गाएंगे, समुद्रों के जलचर गाएंगे यहोवा के लिए, तितलियां गाएंगी, जुगनू गाएंगे। हालेलुया। बसंत ऋतु गाएगी, हालेलुया। ग्रीष्म ऋतु गाएगी, सर्दियों की ऋतु गाएगी, पहाड़ों की ओस यहोवा के लिए गाएगी। वचन में लिखा है, टापुओं, हे पहाड़ों, कूदो यहोवा के नाम में। कायनात यहोवा के लिए गाएगी। यीशु मसीह को अपने दुखों का फल मिलना है। यीशु मसीह को अपनी सलीबी मौत का, यीशु मसीह को नंगा किया गया उसकी मां के आगे, अलफ नंगा। यीशु मसीह को रिवॉर्ड मिलेगा, वो कांटों का ताज जो उसके सर पे रखा, जो उसकी पीठ पे बेरहमी से कोड़े मारे गए, उसकी पसली में भाला घोपा, जो उसके फेफड़ों को चीर के दिल के आर पार हो गया। यीशु मसीह को अपने सलीबी दुखों का यहोवा इनाम देगा। कैसे देगा? वो कहता, मांग, मैं पृथ्वी की कौमें तेरी मिरास के लिए तुझे दूंगा। मैं ऐसे दुआ करता था, मुझे पूरी दुनिया में यहोवा लेके गया, पूरे विश्व में। हालेलुया। कौमों कौमों को जाके मैंने वचन सिखाया। पृथ्वी के कई देशों के प्रेसिडेंट, कई देशों के सेनेटर, कई देशों के कांग्रेसमैन, पॉलिटिशियन, उनके लिए मैंने प्रार्थनाएं की। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, इलीट लोगों की असेंबली में प्रभु ने मुझे खड़ा किया और मैंने उन्हें यहोवा का कलाम दिया। और मैं एक छोटे से गांव से निकला हूँ, पंजाबी मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ। 6ठी कक्षा में जब गया, तब मैंने ABC सीखनी शुरू की। यहोवा के लिए कोई काम अनहोना नहीं है। मांगे वो जो कलाम कहता है। आप झूठे नबियों के पीछे लग के सिर्फ संसारी चीज़ें ही मांगते हो। प्रभु कहता है, दुनिया की हर चीज़ तो मैंने तेरे को देने का ऑलरेडी वादा किया ही है, वो मत मांग। ये लिखा कलाम में, 2 ज़बूर में लिखा है, पृथ्वी की कौमों को मांग, मैं तुझे तेरी मिरास के लिए दूंगा। प्रभु कहता है, क्या मांगना है? बुद्धि मांगे यहोवा से। बुद्धि के अंदर सारे खजाने छिपे हुए हैं। वो मांगे जो कलाम प्रभु खुद कह रहा है। प्रभु क्या कह रहा है? पिता से क्या मांगे? प्रभु कह रहा है, पिता से मांगे, दुआ करें कि पिता, फसल तो बड़ी तैयार खड़ी है, पर फसल काटने वाले मजदूर भेजे। आपको मालूम भाइयों और बहनों, आज दिखावा करने वाले सेलिब्रिटी पादरी तो बहुत हैं, बड़े बड़े, जो बहुत अपना स्टेटस बना के घूमते हैं, बॉडीगार्ड लेके घूमते हैं, बड़े लोगों की गाड़ियों का काफिला चलता है, BMW, मर्सिडीज। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनकी गाड़ियों से, मैं नहीं परवाह करता। मुझे सब कुछ प्रभु ने दिखा दिया, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। मैं नीचे भी सो जाता हूँ। मैंने अपने जीवन को ऐसा सेलिब्रिटी टाइप नहीं बनाया। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह को मजदूर चाहिए। मजदूर नहीं है आज। यीशु मसीह कहता है, दुआ करो कि पिता मजदूरों को भेजे खत्तों में काम करने के लिए। हालेलुया। खत्तों में काम करने वाले मजदूर, सेलिब्रिटी पास्टर नहीं जो बॉडीगार्डों के संग घूमते हैं, काफिला लेके चलते हैं। 10 लोगों के बीच में जाके प्रचार नहीं कर सकते वो, उन्हें प्रॉब्लम होती है, भीड़ें चाहिए उनको, और उनको डायमंड पार्टनर, जुबली पार्टनर, फलाने पार्टनर चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारी ताम झाम और दिखावा चाहिए। जो कोई काम करेंगे वो सोशल मीडिया पे डाल के दिखा के करेंगे दुनिया को। ये भ्रष्ट हो रहे हैं, भ्रष्ट है इस समय। कलीसिया भ्रष्ट हो रही है, कलीसिया को डिच की तरफ लेके जा रहे हैं ये लोग।
तो प्रभु का कलाम क्या कहता है? मैं आपको इस पे और वचन दूंगा, थोड़ी देर के बाद मैं एक और सेशन करूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये दो गवाह हैं यहाँ पे। हालेलुया। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। एक वचन मेरे संग पढ़ें, फिर मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। अभी शायद इसमें काफ़ी सेशन हमें करने पड़ें। ये नबियों की अंडरस्टैंडिंग, समझना इन नबूवतों को बहुत ज़रूरी है। तब आप परमेश्वर के कलाम की पूरी पिक्चर समझ, जब आपको कलाम समझ आएगा, दिखेगा आपको कलाम, तब आपको पिता का चेहरा दिखाई देगा, फिर आपको पिता की नेचर दिखाई देगी, पिता का स्वभाव पता लगेगा, फिर आपको पता लगेगा स्वर्ग का परमेश्वर काम कैसे करता है, फिर आपको पता लगेगा कौन सी चीज़ से यहोवा प्रसन्न होता है और कौन सी चीज़ से यहोवा नाराज होता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो अगर हम पढ़ेंगे यशाया 64 अध्याय का 6 वचन, वहाँ पे प्रभु बताता है कोई भी धर्मी नहीं है, किसी के भी कपड़े साफ नहीं हैं, सब अशुद्ध हैं। और प्रभु बताता है कि हमारे जो बढ़िया से बढ़िया कपड़े हैं वो यहोवा के आगे फिल्दी रैग्स हैं, जस्ट फिल्दी, बिल्कुल गंदे हैं। हमारी धार्मिकता, हमारे अपने यत्न, हमारा जो बेस्ट है प्रभु को हम ऑफर करें ना, अपना बेस्ट, स्वर्ग का वर्स्ट है वो। जो आपका बेस्ट पैमाना है वो स्वर्ग में एक फिल्दी पैमाने की मानिंद है। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं वस्त्र देता है, बाहर से भी बदलता है प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह अंदर की इनिक्विटी को धो देता है। कहता देख मैंने तेरी आई मेड योर इनिक्विटी पास अवे। इनिक्विटी एक एंटिटी है, एक स्पिरिट एंटिटी है इनिक्विटी जो आपके अंदर है। समझ रहे हैं आप, जिसे जनरेशनल कर्स बोलते हैं। यीशु मसीह ने जिनोम से निकाल दी, डीएनए को धो दिया, एंड ही सेड आई मेड इट पास बिफोर दी। वो निकल के चली गई इनिक्विटी। हालेलुया। मैं एक वचन पढ़ता हूँ, यशाया 52 वर्स नंबर 1। अवेक अवेक पुट ऑन दाई स्ट्रेंथ ओ जायोन, पुट ऑन दाई ब्यूटीफुल गारमेंट ओ जेरूशलम द होली सिटी, फॉर हेंस देयर शैल नो मोर कम इन टू दी द अनसर्कमसाइज्ड एंड द अनक्लीन। क्या कहता प्रभु? कहता है यरूशलेम, हे सियोन, अपने सुंदर वस्त्र पहन ले। हालेलुया। प्रभु चाहता है आप सुंदर वस्त्रों में रहें प्रभु के आगे। यीशु मसीह के लहू में डाई किए वस्त्र पहने और पवित्र जीवन जिए प्रभु के आगे। उसके सन्मुख चलें दिन और रात, प्रतिदिन आप यहोवा के आगे चलते रहें। और एक वचन और सुने, यशाया 61 का वर्स नंबर 10। प्रभु क्या कहता है? यशाया 61 का 10, आई विल ग्रेटली रिजॉइस इन द लॉर्ड, माई सोल शैल बी जॉयफुल इन गॉड, फॉर ही हैथ क्लोथ्ड मी विद द गारमेंट ऑफ साल्वेशन। मैं यहोवा अपने परमेश्वर में मगन हो जाऊंगा, यहोवा अपने परमेश्वर में आनंदित होऊंगा, मैं यहोवा परमेश्वर की स्तुति करूंगा आनंद से भर के, क्योंकि उसने मुझे मुक्ति के कपड़े पहना दिए हैं। हालेलुया। ये गारमेंट ऑफ साल्वेशन है भाइयों और बहनों, पवित्र वस्त्र जो प्रभु हमें पहनाता अपने लहू में डाई किए, ये मुक्ति के कपड़े। ही हैथ कवर्ड मी विद द रोब ऑफ राइचियसनेस, उसने मुझे धार्मिकता की रोब दी है, पहरावा दिया है। एज ए ब्राइड ग्रूम डेकेथ हिमसेल्फ विद ऑर्नामेंट्स, एज ए ब्राइड अडोर्नेथ हर सेल्फ विद हर जूल्स। जैसे एक दूल्हा अपने आप को ऑर्नामेंट से, बढ़िया चीज़ों से, सोने चांदी की चीज़ों से अपने आप को श्रृंगारता है, और दुल्हन अपने आप को हीरे मोतियों से श्रृंगारती है। ऐसे यहोवा ने मुझे श्रृंगारा है। हालेलुया। नजात के वस्त्र यहोवा ने मुझे पहनाए हैं। हालेलुया। मुक्ति के वस्त्र यहोवा ने मुझे पहनाए हैं।
यहोवा ने मेरे गंदे वस्त्र उतार दिए हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप अपनी धार्मिकता के वस्त्र नहीं बना सकते, ये यहोवा ने आपको दिए हैं। हालेलुया। इसका एक और पहलू है जो मैंने आपको पहले सिखाया, अगर आपको याद होगा अभी उसमें मैं नहीं जाना चाहता। तो मैं चाहता हूँ आप एक वचन और पढ़ें अय्यूब की किताब में से, उसका 29 अध्याय, उसका 14 वचन। अय्यूब 29 का 14 मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। आई पुट ऑन राइचियसनेस, मैंने धार्मिकता को पहन लिया, एंड इट क्लोथ मी, और इसने प्रभु की धार्मिकता को मैंने कपड़ों की तरह पहना है। माई जजमेंट वॉज एज अ रोब एंड एज अ डायाडेम, जो न्याय था वो वस्त्र की नाई और उस हीरे के पत्थर की तरह था। हालेलुया। प्रभु कहता है अब मैंने तुझे वस्त्रों से, नए वस्त्रों से, नई पगड़ी से और मुकुट भी रख दिया है। हालेलुया। तो प्रभु क्या कहता है अब तू मेरे मार्गों में चलना, मेरी विधियों, मेरी हुक्मों को लेके चलना, तब मैं तुझे चांसलर बना के इस कोर्ट में आने दूंगा। भाइयों और बहनों, हम सब परमेश्वर के कोर्ट रूम में जा सकते हैं। जैसे आप अनुग्रह के सिंहासन के आगे जाते हो ना, कृपा के सिंहासन के आगे यीशु मसीह के नाम में, वैसे हम कोर्ट रूम में जाके प्रार्थना कर सकते हैं। मैं इस संदेश को कंटिन्यू करूँगा थोड़ी देर के बाद, फिर एक छोटा सेशन करेंगे हाफ एन आवर का, तो प्लीज़ मेरे संग ज्वाइन कर लेना। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। इन वचनों पे जो मैंने आपको दिए हैं, प्लीज़ कीप मेडिटेटिंग, इनके ऊपर मनन करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।